الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک اہم موضوع ہے کہ جس کے اوپر چند منٹ گفتگو کرنا چاہوں گا، اور یہ موضوع جو اس وقت غالباً ایک ہفتے سے اسلاموفوبک میڈیا کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے لائم لائٹ میں ہے، اور یہ موضوع ہے جزیہ کا۔ شاید شروعات اس کی یہاں سے ہوئی کہ این سی آر ٹی کی کتاب میں سوشل اسٹڈیز میں، جہاں پر ہسٹری وغیرہ اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں جزیے کا ذکر کیا گیا، اور جزیہ کو ایک ظالمانہ ٹیکس، ایک ڈسکریمنیٹری ٹیکس قرار دیا گیا کہ مذہب کی بنیاد پر چونکہ یہ ٹیکس لگایا گیا تھا غیر مسلموں پر مغلیہ دور میں یا اسلامی حکومت کے دور میں، اور اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں۔ انسینٹیوائز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ترغیب دی جائے کہ بھئی اگر تم مسلمان بن جاؤ گے تو تمہیں جزیہ نہیں دینا پڑے گا، اور اگر مسلمان نہیں بنو گے، اسلام میں داخل نہیں ہوگے، تو تمہیں جزیہ دیتے رہنا ہوگا۔ یہ ہے انسینٹیوائز کا مطلب۔ تو اس کے اوپر کافی سوشل میڈیا کے اوپر بھی لیدے ہو رہی ہے، میڈیا کے اوپر بھی۔ ویسے تو میڈیا کا خیر اب کوئی اعتبار رہا نہیں ہے، وچ از ویری گڈ، لیکن جب اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اور اسلامی تعلیمات پر کوئی اعتراض آتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس اعتراض کا یا اس آبجیکشن کا جواب دیں، اور اگر اس تعلق سے کوئی مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے تو اس کو بھی کلیئر کریں۔ یہاں میں ایک چیز ڈسکلیمر کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو آنے والی گفتگو ہے اس میں ہمارا مقصد ہرگز مسلم رولرز کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس سٹریم کا مقصد مسلم رولر کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یعنی ہم نے نہ آج تک یہ کیا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مسلم رولرز کے تعلق سے خصوصاً انڈیا میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع ہسٹری کا ہے اور ایک مستقل الگ اسٹریم اس موضوع پر ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہم ان مسلم رولرز کو یہ مانتے ہیں کہ بھائی یہ 100% اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور ان کے یہاں اپنی زندگیوں میں اسلام مکمل طور پر رائج تھا، وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے تھے، وہ معصوم عن الخطا تھے، وہ انفیلیبل تھے۔ یہ ہم مانتے ہی نہیں۔ وہ انسان تھے، میرے اور آپ کی طرح انسان تھے، ان کے یہاں بھی مفادات تھے، ان کے یہاں بھی مفادات کی جنگ تھی، وہ بھی ایکسپینشنسٹ تھے، ان کو بھی اپنی سرحدوں کو وسیع کرنا تھا، ان کو بھی علاقوں کے وسائل کو اور ریسورسز کو اپنے استعمال میں لانا تھا، جس طرح عام رولر ہوتا ہے، جس طریقے سے ہر ملک خصوصاً کولونیلسٹ نے تو پوری دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کے وسائل کے اوپر قبضہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو بڑے بڑے طاقتور ممالک ہیں وہ دوسروں کے وسائل اور ریسورسز کے اوپر قبضہ کر کے ہی تو زندہ ہیں۔ اس وقت جو ٹریڈ وار پوری دنیا میں چل رہی ہے، یہ ٹریڈ وار کیوں ہے؟ ٹریڈ وار اس لیے ہے کہ مثلا چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسس پوری دنیا کی مارکیٹس میں ہو، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسس پوری دنیا کی مارکیٹ میں ہو، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے، اور اسی لیے وہ پلٹ وار کر کے دوسرے ملکوں کے پروڈکٹس کے اوپر 100%، 200%، 500% ٹیرفز لگانے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ایک ملک کو دوسرے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ یہ پوری دنیا کو سکھا دیا کولونیلسٹ نے کہ بہت یعنی اپنے آپ کو مورلی اپ رکھتے ہوئے، مورلی اسٹرانگ رکھتے ہوئے، اور دنیا کے سامنے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم بہت ہی بااخلاق قوم ہیں، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا سبق گزشتہ 200-250 سال سے پوری دنیا پڑھتی آ رہی ہے۔ تو وہ جو رولرز تھے، مسلم رولرز، وہ بھی انسان تھے، اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں یہاں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے۔ یہاں جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے اسلام کی، نہ کہ کچھ مسلمانوں کی، کہ اسلام میں جزیہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے،
اور اس کی کیا حکمت ہے، اور کیا واقعی یہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے کہ جیسا کہ اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے، یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو جزیے کی بنیاد ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے جنگ کا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ اس آیت میں یہ آیت 29 ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑائی کرو کہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں سمجھتے، اور دین حق کی اتباع نہیں کرتے، دین حق کو فالو نہیں کرتے، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، اس کے باوجود دین حق کو نہیں مانتے۔ کب تک لڑائی کرو؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، عن یدن اپنے ہاتھ سے دیں۔ تو عن یدن کا مطلب ہے they have to pay، وهم صاغرون، صاغرون while they are subjugated۔ اب یہ جو لفظ ہے وهم صاغرون، اس کا ترجمہ کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر۔ یہ مترجم کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ صاغرون کا مطلب ذلیل و خوار ہونا نہیں ہے۔ صاغرون کا مطلب ہے جو میں نے ابھی ترجمہ کیا سبجوگیٹڈ۔ سبجوگیشن کا مطلب کیا ہوا؟ سبجوگیشن کا مطلب ہے تابع دار ہو کر۔ اب جب آپ نے یہ آیت سمجھ لی کہ اس آیت میں جزیہ کا تذکرہ ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جزیہ تابع دار ہو کر کیوں دیا جائے؟ یہ جو میں آگے گفتگو کرنے والا ہوں اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ میرا سوال ہے کہ دنیا کی وہ کون سی حکومت ہے کہ جو اپنے سٹیزنز کو یہ کہتی ہے کہ سٹیزنز کو ہماری لائلٹی، ہماری وفاداری اور ہماری تابع داری کی ضرورت نہیں ہے؟ اس حکومت کا نام بتا دیں۔ کیا دنیا میں ایسی کوئی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے تاریخ کے کسی بھی دور میں؟ نہ صرف یہ کہ ہمارے دور میں، تاریخ کے کسی بھی دور میں کیا دنیا کی کوئی ایسی حکومت ہے جو یہ کہے کہ نہیں، ہمارے جو شہری ہیں مکمل آزاد ہیں، انہیں ہمارے کسی قانون کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہماری کسی طرح کی تابع داری کی ضرورت نہیں، کسی طرح کی لائلٹی اور وفاداری کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہے کریں؟ ایسی کوئی حکومت نہیں ہے۔ تو پھر یہ توقع اور یہ ایکسپیکٹیشن اسلامی حکومت سے کیوں؟ اسلامی حکومت بھی اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کو سبجوگیٹ کرے گی، اور سبجوگیٹ کا مطلب یہ کہ تابع دار بنائے گی، کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین اسی وقت ہوگا کہ جب سٹیزنز اس حکومت کے تحت اس خیال اور اس احساس کے ساتھ رہیں گے کہ ہمیں یہاں کے قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ جو قانون کی پاسداری کا خیال ہے، یہ جو سینس آف بلانگنگ ہے، یہی صاغرون ہے۔ اس کا مطلب ذلیل اور رسوا ہونا نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ زبردستی لا انفورس کرے اور رعایا کو تابع دار ہونا پڑے گا، اگر آپ اس کو ذلت الرسوائی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر صاغرون کے معنی ذلت الرسوائی کا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر مانیے کہ دنیا کا ہر فرد ذلیل الرسوا ہے، چونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی حکومت کے تحت رہتا ہے۔ آپ بھی ایک حکومت کے تحت ہیں، میں بھی ایک حکومت کے تحت ہوں، اور دنیا کا ہر آدمی کسی نہ کسی نظام کے تحت رہتا ہے۔ وہ نظام چاہے ڈیموکریسی کا نظام ہو، چاہے وہ آٹوکریسی کا نظام ہو، چاہے وہ تھیوروکریسی کا نظام ہو، چاہے وہ قبائلی نظام ہو، ہر شخص کسی نہ کسی نظام کے تحت ہے۔ اگر نظام کو فالو کرنا ذلت اور رسوائی ہے تو ہر آدمی ذلیل اور رسوا ہے۔ اس کا تعلق پھر صرف اسلام سے نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں قرآن کریم نے واضح طور پر جزیے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اگر کوئی انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپولوجیٹک ہے، یا تو وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، حدیث کو نہیں سمجھتا، اور وہ صرف شوگر کوٹ کر کے اسلام کو پیش کر رہا ہے۔ ایسے اسلام کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ قرآن میں جزیے کا تذکرہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جزیہ کیا ہے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے۔ ظاہر ہے کہ جزیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے کوئی اچھا کام کر دے، نہیں، جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے دینے ہیں، تو یہ ٹیکس ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، اور یہ سوال بھی پوری دنیا کے تناظر میں ہے،
पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में है। वो सवाल ये है कि क्या कोई मुल्क ऐसा है कि जो अपने टैक्स लॉ में डिस्क्रिमिनेट ना करता हो या डिफरेंशिएट ना करता हो, यानी उसने लोगों को क्लासेस में तकसीम किया हुआ है कि ये जो फला क्लास के लोग हैं इनको टैक्स इतना देना है, फला क्लास के लोग हैं उनको टैक्स इतना देना है, टैक्स ब्रैकेट्स हैं। मसलन आप, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं इंडिया या अमेरिका या इंग्लैंड के टैक्स लॉ का माहिर हूं, हरगिज नहीं। कोई भी आदमी जब तक कि वो इस मौजू के ऊपर डिग्री याफ्ता ना हो उसको महारत का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्ट फ्रॉम एन ऑप्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर बाहर से बैठकर देखें टैक्स के निजाम को, क्या इंडिया में मसलन खवातीन के ऊपर टैक्स की जो कानून है खवातीन के लिए वो मर्दों से डिफरेंट नहीं है, यानी औरतों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अब एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो नहीं, तो औरत के साथ आपने थोड़ी रियायत कर दी। ये क्यों रियायत की, किस बुनियाद पर की? अच्छा, अब अगर एक मर्द है वो टैक्स से बचने के लिए औरत बनना चाहता है, आजकल तो ये चलन भी बहुत आम हो गया है कि बहुत से मर्द औरत बन रहे हैं, बहुत सी औरतें मर्द बन रही हैं, तो क्या एक मर्द के जिसके अंदर औरतों वाली टेंडेंसी है फॉर वट एवर रीजन, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या जो भी है, तो क्या आप उसको वही रियायत देंगे जो एक औरत को दी जाती है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अभी मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया। इंडिया में मसलन, बल्कि मैं ये कहूं कि सारी दुनिया में जितने भी मुल्कों में टैक्स है और हर मुल्क में टैक्स है, ये कानून है कि अगर आप इतना अमाउंट सालाना कमाते हैं तो आपके ऊपर इतना % टैक्स है, और उस अमाउंट से मसलन 15% टैक्स है। उस अमाउंट से आप ज्यादा कमाते हैं, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी है आप सालाना कमाते हैं, तो अब आपके ऊपर 30% टैक्स है। तो एक आदमी ये सोचे कि यार मैं इसलिए कमाता हूं कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन अच्छी जिंदगी का ख्वाब ज्यादा कमाने के बावजूद, ज्यादा मेहनत करने के बावजूद, ज्यादा खुशकिस्मत होने के बावजूद 30% गवर्नमेंट ले जाती है। और सिर्फ यही नहीं कि मैं इनकम टैक्स देता हूं, मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूं, मैं रोड टैक्स देता हूं, टोल टैक्स जिसको बोला जाता है। उसके बाद फिर मैं हर चीज जो भी मैं परचेस करूंगा उस पर सेल टैक्स दूंगा, फिर उसके बाद जीएसटी दूंगा। आपने कभी तसव्वुर किया है कि आप ऐसे मुल्क में रहकर कि जहां इस तरह के टैक्स लॉज हैं, 1 रुपए में कितना टैक्स देते हैं? लिटरली आप 1 रुपए में तकरीबन 60 से 70 पैसे टैक्स में देते हैं। तो कमाते तो आप 1 रुपया हैं, लेकिन आपका मोर देन 50% लेके जाती है हुकूमत अलग अलग टैक्स के हिसाब से। लेकिन अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, यह मिसाल है अमेरिका की, और यह मिसाल इसलिए दी जा रही है चूंकि अमेरिका में जो टैक्स लॉ है वो दुनिया के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज में से एक है। और इत्तेफाक की बात यह है कि यह वो मुल्क है कि जहां इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद आबाद है और बड़ी खुशी से सब लोग टैक्स देते हैं। और मैं बात कर रहा हूं H1B वीजा वालों की। ठीक है, H1B वीजा क्या है? H1B वीजा वर्क वीजा है। आईटी में जितने बड़े बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया से आईटी प्रोफेशनल्स हायर करती हैं, और लाखों की तादाद में अमेरिका में H1B वीजा वाले आबाद हैं। इनको टैक्स देना पड़ता है जिस तरीके से एक आम सिटीजन को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन एक सिटीजन को टैक्स में रियायत मिलती है। H1B वीजा वालों को टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर, अगर H1B वीजा वाला शख्स, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली में 2-4 बच्चे हैं और ये बच्चे अमेरिकन सिटीजन नहीं हैं, तो अब जब ये टैक्स भरेगा तो उसको 100% जितना भी टैक्स उसके ऊपर है वो उतना टैक्स उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी जॉब पर, उसी मुलाजमत के ऊपर, उसी कंपनी में, उसी पोजीशन पर एक यूएस सिटीजन है और उसके भी 4 बच्चे हैं और उसकी भी उतनी तनख्वाह है, उसका सारा टैक्स बच जाएगा, या कम से कम 70-80% टैक्स बच जाएगा उसके बच्चों की वजह से। तो क्या ये सवाल किसी के जहन में आता है कि यार ये गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट क्यों करती है? वो भी उस आपके मुल्क में काम कर रहा है, ठीक है, आपका सिटीजन नहीं है, पासपोर्ट उसके पास इंडियन है आपके मुल्क, लेकिन अमेरिका में काम कर रहा है, उसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसी बिल्डिंग में काम कर रहा है,
उसका भी केबिन आपके केबिन के बराबर में है, दोनों बिल्कुल एक साथ, एक ही पोजीशन, एक ही जॉब, एक ही प्रोफेशन, एक ही डिग्री, एक के पास यूएस पासपोर्ट है, दूसरे के पास इंडियन पासपोर्ट है, दोनों के एम्प्लॉयर एक है, कंपनी एक ही है, उसको टैक्स ज्यादा देना है, आपको कम देना है, अमेरिकन सिटीजन को। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिसको कम देना है वो अमेरिकन सिटीजन है, गवर्नमेंट उसका फेवर करेगी। आप बाहर के हैं, जो H1B वीजा वाला है वो बाहर का है, उसको अगर इस मुल्क में रहना है तो उसको फुल टैक्स देना पड़ेगा, वो अपने आप को सिटीजन से कंपेयर नहीं कर सकता। तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि उस H1B वीजा वाले के लिए एक इंसेंटिव, इसको इंसेंटिवाइज कर दिया कि भाई अगर तुम्हें टैक्स बचाना है तो तुम्हें यहां की अमेरिका की सिटीजनशिप लेनी होगी, और सिटीजनशिप लेना आसान नहीं है। आज भी मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो H1B वीजा पर इस मुल्क में आए थे, 20 साल हो गए अभी तक के उसी वीजा पर अटके हुए, 20 साल हो गए। उसके बाद उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, ग्रीन कार्ड 5 साल तक रखेंगे, फिर उसके बाद कहीं सिटीजनशिप होगी, तो 20-20, 25-25, 30-30 साल हो जाते हैं, लेकिन और इस तरह वो टैक्स देते हैं। तो क्या ये सिटीजन्स को टैक्स में छूट देना इंसेंटिवाइज नहीं है? H1B वीजा वालों के लिए उनको तरगीब नहीं दी जा रही है कि तुम सिटीजनशिप का रास्ता इख्तियार करो, और सिटीजनशिप को मुश्किल कर दिया। लेकिन अगर एक आदमी इस्लामी हुकूमत में है और जिम्मी है, और उसको यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर टैक्स है, वो टैक्स जो बहुत मामूली है, 50% नहीं है तुम्हारी तनख्वाह का, 60% नहीं है, 40% नहीं है, बल्कि वो 2% के आसपास है, उससे भी लेस है बाज हालात में। और वो गरीब के ऊपर नहीं है, वो औरत के ऊपर नहीं है, वो बच्चे के ऊपर नहीं है, वो प्रीस्ट के ऊपर नहीं है, वो पंडित के ऊपर नहीं है, यानी जो मजहबी शख्सियात है उनके ऊपर नहीं है, वो एक ऐसे शख्स के ऊपर है जो कमा रहा है या कमाने की सलाहियत रखता है, घर बैठा हुआ है। तो अगर ऐसे शख्स के ऊपर इतना कम टैक्स है, और वो इसलिए है कि वो जिम्मी है, यानी उसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, और कोई आदमी ये सोचे कि यार मुझे ये 1 रुपया भी नहीं देना, मैं प्रटेंड करता हूं कि मैं मुसलमान हूं, वो दिल से इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मैं प्रटेंड करता हूं मैं मुसलमान हूं, जाके कह दूंगा मैं मुसलमान हूं, तो वो टैक्स भी खत्म हो जाता है। उसके लिए कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है कि आपको 20 साल रुकना है, 25 साल रुकना है, 30 साल रुकना है, आपको इतनी मेहनत करनी है, मजदूर बनना है, कॉर्पोरेट कल्चर का स्लेव बनना है, तब जाकर आप कहीं 20 साल के बाद, 30 साल के बाद सिटीजन बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट में बंदा मुसलमान बनता है, और 1 मिनट के अंदर वो जिजिया साकित होता है। तो जरा कोई मुल्क ऐसा हो, उसका आप मिसाल बता दें कि जहां पर एक हुकूमत इंसेंटिवाइज कर रही है कि सिटीजनशिप हासिल करने के बाद टैक्स में आपको रियायत दी जाएगी, और सिटीजनशिप आप 1 मिनट में हासिल कर सकते हैं। उस मुल्क का नाम बता दीजिए। ये जो पूरी मैंने मिसाल दी है, इससे ये समझ में आता है कि दुनिया में जहां पर भी टैक्स निजाम है उसमें इक्वालिटी नहीं है। दुनिया में जहां पर भी टैक्स निजाम है उसमें इक्वालिटी नहीं है, और नहीं इक्वालिटी पॉसिबल है, और नहीं दुरुस्त है। टैक्स निजाम में आपको इनइक्वालिटी करनी होगी, और उसका जस्टिफिकेशन करना होगा कि भाई इस क्लास के ऊपर यह टैक्स लगेगा, उस क्लास के ऊपर यह टैक्स लगेगा। जिजिया भी एक टैक्स है, और इसको किसी भी सूरत में जालिमाना टैक्स नहीं करार दिया जा सकता। और यह टैक्स जाहिर है कि एक इस्लामी हुकूमत में लगेगा, चूंकि इस्लामी हुकूमत की जो बुनियाद है वो है इस्लाम, जब भी वो इस्लामी हुकूमत है। लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, यहां पर लोगों को, बल्कि बच्चों को रोज अव्वल से यह बताया जाता है कि मजहब और दीन आपका पर्सनल मामला है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके जहन में यह बिठा दिया जाता है कि दीन पर्सनल मामला है। वो सोचता है कि यार जब दीन मेरा पर्सनल मामला है, मैं कुछ भी बिलीव कर सकता हूं, किसी की भी पूजा कर सकता हूं, कुछ भी इबादत कर सकता हूं, तो मेरे पर्सनल बिलीफ के ऊपर टैक्स क्यों लग रहा है? अगर आप ये मान के चलें तो ऑब्वियसली बात है कि फिर ये जो जिजिया है आपको जालिमाना निजाम लगेगा कि किसी के पर्सनल बिलीफ के ऊपर टैक्स क्यों लगे। लेकिन यह बताना ही गलत है कि मजहब पर्सनल मामला है। मजहब पर्सनल मामला है ही नहीं। जब आप एक इस्लामी हुकूमत में रहते हैं तो मजहब पर्सनल नहीं है, मजहब आपकी आइडेंटिटी है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि सिटीजनशिप में आप किसी भी मुल्क में हैं, वहां की सिटीजनशिप पर्सनल मामला नहीं है। सिटीजनशिप का मतलब यह है कि आप स्टेट के साथ लॉयल हैं।
सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आप उस कानून की पासदारी कर रहे हैं, उस कानून के ऊपर आप हलफ उठाते हैं, यह है सिटीजनशिप। ऐसे ही एक आदमी अगर इस्लामी हुकूमत में रहता है और इस्लामी हुकूमत का सिटीजनशिप उसको हासिल है इस्लामी हुकूमत की, उसका मतलब यह हुआ कि वो इस्लामी हुकूमत का वफादार है, और उसकी सिटीजनशिप इस पर डिपेंड करती है कि वो इस्लामिक वैल्यूज को इख्तियार करे। तो अब जब ये बात है तो फिर जाहिर है कि इस्लामी हुकूमत में रहने वाला अगर एक काफिर जिम्मी बनता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि उस जिम्मी को वही राइट्स दिए जा रहे हैं जो राइट्स मुसलमानों को दिए जा रहे हैं, एग्जैक्ट वही राइट्स। दूसरी बात यह है कि उस जिम्मी को यह नहीं कहा जा रहा है कि आप 100% लॉयल्टी दिखाओ इस्लामी हुकूमत से, क्योंकि 100% लॉयल्टी का मतलब है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लॉयल्टी, और जिम्मी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता ही नहीं, इसके बावजूद वो इस्लामी हुकूमत में रह सकता है। जब वो इस्लामी हुकूमत में है तो उसका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट चलाने में क्या है, कुछ तो होगा ना। ज़कात उससे नहीं ली जा रही, उशुर उससे नहीं लिया जा रहा, खिराज उससे नहीं लिया जा रहा, तो क्या देगा वो, उसका कोई ना कोई टैक्स तो होगा। तो जो भी टैक्स होगा जो उसको इस्लामी हुकूमत में रहने का हकदार बनाता है, उसी टैक्स को जिजिया कहा जाता है। तो अब ये जो पॉइंट्स हमने जिक्र किए उसमें पहला पॉइंट तो ये है कि जिजिये का जिक्र कुरान में है, इसका कोई इंकार नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि वहुम सागिरून जो आयत है, आयत नंबर 29, इसका मतलब जलील और रुसवा करना नहीं है, इसका मतलब है सब्जुगेट करना। और इस्लामी हुकूमत के अलावा दुनिया की हर हुकूमत अपनी रियाया और अपने बाशिंदों, अपने सिटीजन्स को सब्जुगेट करती है, इसलिए अंग्रेजी में रियाया को सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट यह हुआ कि जिजिया अगरचे बजाहिर ऐसा लगता है कि एक यानी एक तरह का टैक्स है जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो करता हो, दुनिया की हर हुकूमत में और दुनिया के हर मुल्क में जो टैक्स का निजाम है वहां पर किसी न किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई किया जाता है टू एन एक्सटेंट। अब आप कहें भाई जिम्मी का लफ्ज तो ये भी बड़ा तौहीन आमेज है। इस पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप यूके में या यूएसए में आते हैं और यहां आकर मसलन आप वर्क वीजा पर आए, तब तो आप फॉरेनर्स हैं, आप चाहे 20 साल में आप फॉरेनर्स हैं। लेकिन जब आपका स्टेटस बदलता है और आप वर्क वीजा से मसलन ग्रीन कार्ड पर आते हैं, तो ग्रीन कार्ड वैसे तो बहुत अच्छा लफ्ज है, ग्रीन कार्ड भाई, हरा कार्ड, लेकिन असल जो उसका जो टेक्निकल नेम है वो क्या है, एलियन कार्ड। एलियन का मतलब पता क्या होता है? एलियन, आपने नाम सुना होगा, एलियंस भाई जो दुनिया के बाहर रहते हैं। एलियन का माना है गैर, इसीलिए ऐसे लोगों को रेजिडेंट एलियंस कहा जाता है अमेरिका में। ये गैर लोग हैं जो यहां आके मुकीम हो गए। फिर ये जो अगियार हैं, जो गैर लोग हैं, क्यों गैर हैं? चूंकि ये अपनी हुकूमतों के वफादार है। ये अमेरिका के या यूके के वफादार नहीं है, यूके की क्वीन या किंग के वफादार नहीं है, इसलिए ये एलियंस हैं। ओके, नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद दैट, हर एक आदमी, हाँ जी, बल्कि वो सारे के सारे लोग कि जिनको जिजिया पर प्रॉब्लम है अपने आप को फख्र से कहते हैं कि हम यहाँ के रेजिडेंट एलियन है। फिर उसके बाद 5 साल के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाती है अगर वो चाहते हैं, और अब एलियन का ठप्पा उनसे हटता है, अब वो सिटीजन बनते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस्लामी हुकूमत में जिम्मी का लफ्ज इतना शानदार और इतना जबरदस्त कि उसमें कहीं भी किसी भी तरह की तौहीन आमेजी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिम्मी का मतलब है कि हुकूमत ने आपकी जिम्मेदारी ले ली, यू आर इन माई प्रोटेक्शन, ये जिम्मी, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। क्या एलियन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने आपकी जिम्मेदारी ले ली? एलियन का मतलब है कि आप बाहर के, आप गैर हैं, यूर अदर। और जिम्मी का मतलब यूर माइन, क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी में हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में जो इस्लामोफोबिक बैठे हैं वो जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ इन मौजूआत को उठाते हैं, और वो लोग, वो बच्चे के जो पूरी रात सिर्फ चंद जीबी डाटा के चक्कर में अपनी रातें गुजार देते हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास हुनर नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम जिन्होंने अपनी जिंदगी का किया है, उनके दिमागों तक ये लोग पहुंचते हैं और उनको मुसलमानों से बज्जन करते हैं, इस्लाम से बज्जन करते हैं। तो अगर किसी को जिजिये पर एतराज है तो उसको चैलेंज ये है कि वो ये साबित करे कि दुनिया के हर मुल्क में
टैक्स का निजाम इतना फेयर है कि वहां किसी भी तरह का जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना इंडिया में, ना अमेरिका में, ना यूके में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना दुनिया के किसी भी मुल्क में। वो ये साबित करे और उसके बाद आकर हमसे गुफ्तगू करे। आज भी अगर किसी को इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है तो बात यहां से शुरू होगी कि टैक्स के निजाम में जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया। चलें जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बैक स्टेज पर हैं तौहीद साहब और एक्नॉलेज इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त आपने इनिशियल टॉक दी और मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर और मीडिया चैनल्स पर भी ये हॉट टॉपिक बना हुआ था। और जो आपने बात कही, जो आपने एक पैरल दिया, क्योंकि मेन आर्ग्यूमेंट का ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। When you say that there should not be any discrimination, that means there should not be any discrimination. सही, तो फिर उसमें आप स्पेशल प्लीडिंग नहीं कर सकते। फिर ये बिल्कुल। स्पेशल प्लीडिंग की पॉलिसी हो जाएगी कि आप ये कहें कि नहीं, जेंडर बेस्ड या सिटीजनशिप बेस्ड या जी, रेशियल बेस्ड या एनी क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हो। एग्जैक्टली, फिर बिकॉज आर्ग्यूमेंट ही यही है कि जी डिस्क्रिमिनेशन हाँ, नहीं होना चाहिए। फिर औरत को टैक्स में कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, महज इसलिए कि वो औरत है। बिल्कुल, यार औरतों के तो माशाल्लाह से मजे हैं मुफ्ती साहब, बसों में जी। भी मुफ्त में